viewers, this is Nisma Amir with another episode of our amazing program Meet the CEO, जिसका मकसद है पाकिस्तान के कामयाब तरीन CEOs को डिस्कवर करना और आपसे मिलवाना, so that you can learn from their success and the struggles behind their journey. Today we're going to meet Mr. Ayub Ghauri, CEO and founder of HospitALL. He is a dreamer, an entrepreneur, and believes in working for the greater good of the community. Welcome to our show. Glad to be here. Thank you very much. Pleasure. So you have given multiple interviews before, but in this one, we really need to know that who is Ayub Ghauri और कहाँ से आपकी journey शुरू हुई, professional life का आगाज़ कहाँ से हुआ. So just tell us everything. Oh God, एक ही question इतना लंबा हो गया. Ayub Ghauri is a rebel, a disruptor, a social reformist who would like to transform the society. A leader without preaching and making a difference, everything that he touches. A sleeping artist deep inside. Oh, wow. There's a lot of facets. I have multiple personality and sometimes I feel कि मैं सही भी हूँ कि नहीं हूँ कि मुझे किसी psychiatrist के पास जाना पड़े. लेकिन एक बात तो तय है कि I am seeking excellence. Whatever I do, I would like to be the best within that. Not compared with anybody else. Within myself, every day, am I doing better than yesterday? I started off my life in Lahore. And after college, I went to England and I did some time learning a few skills. And then I went to California. Okay. And I did my MIS degree from there. और उसके बाद फिर इंग्लैंड में ही फिर I got married very early in life, even before I got graduated. अच्छा. Yeah, so settled down in England and spent a major part of my life there. जी, तो उसमें काफ़ी चीज़ें आती रहीं, जैसे मैंने कहा रेबल हूँ और मेरा दिल फिर होता है कि नहीं यार अब ये कर लिया है, अब मुझे और क्या करना है. I'm a serial entrepreneur as well. Yes, definitely, we know that about you. And we would want you to tell us more about that as well. जी, so England में different phases रहे. जी. And funny enough, it started off with promoting, travel tourism. अच्छा. Health tourism के लिए to be very precise. इस बीच में जो एक very strong phase थी, वो fashion business की थी. Yes. There was an urge to establish something really big from Pakistan. And then NetSol happened. Yeah. And I was drawn into NetSol technologies. इससे पहले जो sleeping, जो artist वाली बात है, वो phase थी, जहाँ पे I wanted to be in front of the camera. Really? तो वो phase जो थी, मेरी in front of the camera भी थी, और as a producer भी थी. Now I'm talking about 17-18 years back, I produced a drama that was about elderly people. I must say it was not successful commercially, but जो मैं चाहता था मैंने किया. और वो जो elderly की cause लेके चलने का है, वो आज 17-18 years later, वो माँ बसेरा की सूरत में मैं उसी cause को serve कर. You were settled in London और वहाँ पे आप you were doing pretty well for the career path that you chose, fashion को लेकर. ऐसा क्या आपको trigger हुआ the reason behind coming back to your own country? वो जो phase थी, achieving excellence, वो जब हो गई तो फिर मुझे लगा कि I cannot make any further difference. Then I said कि नहीं यार अब काफ़ी अर्सा हो गया बाहर निकले हुए हैं, अब पाकिस्तान की तरफ चलना चाहिए. And NetSol की जो एक phase मेरी इंग्लैंड से शुरू हुई थी और बीच में से ब्रेक आ गई थी, वो दोबारा शुरू हुई. तो अभी at NetSol my job is of heading an incubator. Inspire is the incubator. आपने अपनी पर्सनालिटी के मुताबिक क्या वैल्यू ऐड की नेटसोल को, या क्या आपको लगता है कि आप ऐसा एक एलिमेंट लेके आए नेटसोल में जो मिसिंग था पहले? See, on the top,
NetSol has a lot of passion. जो second tier है, it's more professional. I added that flair of passion, leveraging who I am. I was able to take this message beyond what was being done at that time. और वो मैसेज फिर मैसेज तक पहुंचा है, बड़ी बड़ी दूर ट्रैवल किया है हमने इस मैसेज को लेके। पेशावर तक गए हैं, कराची गए हैं, एक दूसरे एंड में इस्लामाबाद आना जाना होता है टू सर्च फॉर द राइट कंपनीज एंड टू सपोर्ट द इकोसिस्टम, क्योंकि वहाँ भी काफ़ी इंक्यूबेटर्स हैं, केपीके में भी हैं, और वो लोग बुलाते रहते हैं कि आप मोटिवेट करें। तो जहाँ तक कर सकते हैं वो करते हैं। थोड़ा सा डिटेल में हमें इंस्पायर का बताएं कि ये प्लेटफॉर्म क्या है और कैसे ये कैटलाइज करता है, ऑगमेंट करता है यंग प्रोफेशनल्स के ट्रैक को। So what happens is this, we invite the youngsters to apply for a program which lasts five months. It doesn't cost anything. They get a facility to sit in. They get a team of professionals who look after them professionally in their development, in the different subjects, business ideation से लेके उनके business plans हैं, financial planning है, उनकी products है, उनकी product की development है, कौन सी technology use कर रहे हैं। We opened our application process and we get, let's say, about 100 applications. We only pick out 10. और in the end, जो graduate करते हैं वो 6 से 8 से ज़्यादा नहीं होते कि our criteria is very strict. Your very, very special venture, which is HospitALL, which is related to healthcare. जी। Further, we want you to tell the audiences about it. It's like a super app. कि ऐसी ऐप हो जिससे लोगों को सब कुछ पता चल रहा है, चाहे वो best doctor that is available, within the timings, within the budgets, within the geographical area, what are the choices. तो हमें लगा कि there is a room to bring better value to the consumer. और ये कोई एक हॉस्पिटल डॉक्टर नहीं कर सकता, एक न्यूट्रल बॉडी ही कर सकती है जो किसी एक से एफिलिएटेड नहीं है, and they're choosing the best. तो within the constraints that we have, we try to give the best. तो आपको क्या लगता है कि HospitALL जो है वो कैसे हेल्थ केयर सिस्टम को ऑगमेंट कर सकता है in future? How can it like revolutionize the whole system? It's a very good question. I think when you become more visible, you're creating more competition. When you're creating more competition, the beneficiary is the end consumer. Definitely. So for me, if we can create that, that ecosystem, जहाँ पे लोग people are constantly seeking excellence, वहाँ पे फिर competition होगा. So it's basically benefiting both the sides, the client care side providers and care बिल्कुल. seekers. We all know that we've been hit with the pandemic. तो COVID के लिहाज से how has the businesses been affected, और generally HospitALL का जो है वो क्या role रहा है in case of COVID? जी, HospitALL is very active within this segment as well, and we give all kind of advice and facilitation. If the patient wants the care at home, if they want to stay within the secure environment of their home, they will be provided all those services. तो वहाँ उन्हें वो पहुँचाई जाती हैं। जैसे अभी आपने बताया कि when you did your first production venture, it was a very unorthodox topic that you took, elderly people. Usually लोग love story, comedy, इन चीज़ों की तरफ चले जाते हैं. That means that you always had a sensitive streak for this age group. और वहीं से I think कहीं से माँ बसेरा का जो है conception भी हुआ होगा. 2-3 चीज़ें हैं जिन्होंने ट्रिगर किया माँ बसेरा। एक तो मैं जिक्र करूँगा जुनैद जमशेद का। I was listening to him. अच्छा. Bless his soul. I was listening to him और जुनैद कह रहे थे कि अगर आपने ज़िंदगी में कामयाब होना है तो अल्लाह को अपना पार्टनर बना लो। तो ये थॉट कहीं मेरे दिमाग में रह गई कि मुझे सोशली कुछ करना है। I lost my mother very early in life. I still haven't gotten over her presence that was there, her aura. तो मैंने जब इसके साथ अटैच किया, तो one day I told my wife कि you know what, I'm going to have a home for these displaced women, elderly women. फिर क्या हुआ, एक ट्रिगर पॉइंट आया 5-6 महीने पहले. There was a guy and his wife, they were going physically abusive towards his mother.
और that video went viral. हाँ जी. That was a big trigger point. मैंने कहा यार जब करना ही है कुछ तो 6 महीने का इंतजार 8 महीने का इंतजार क्यों किया जाए. And I started putting it together in my mind. अच्छा, my wife didn't know anything about it. She's very spiritual minded in that sense. तो वो काफ़ी अरसे से आना जाना उनका लगा, बल्कि शी इज़ मोर प्रैक्टिकल. जब मैंने सारा प्लान कर लिया तो मैंने कहा यार मैं ये सोच रहा हूँ. कहती है आई एम विद यू. मैंने कहा रियली? मैंने कहा मैं तुम पे तो बेस किया ही नहीं है. कहती नहीं, आई एम विद यू, मैं तो शुरू से ये चाहती थी. एंड बिकॉज यू आर डूइंग फॉर योर मदर एंड यू नो आई रियली रिस्पेक्ट हर अ लॉट एज वेल, सो आई वांट टू बी पार्ट ऑफ इट. तो हमने फिर इसको थोड़ा एक्सपेंड किया. अभी कुछ दिन, एक आध हफ्ता और गुजर गया, मैंने जब पूरा प्लान कर लिया और सब कुछ कर लिया. वन डे आई सेड व्हाई डोंट आई हैव नॉट शेयर्ड दिस विद माय ब्रदर्स. एंड ज़ाहिर है मैं अगर माँ के लिए कर रहा हूँ, उनकी भी माँ है. बिल्कुल. तो मैंने अपने ब्रदर से शेयर किया. कह लेंगे यार ये तुम कैसे सोच सकते हो कि तुम अकेले करोगे, वी आर राइट बिहाइंड यू. वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ इट. सो वो एक छोटा सा आइडिया जो कंसीव हुआ था वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हो गया. Tell us how it works, थोड़ा सा, so that audience knows कि exactly है क्या और कैसे उधर facilitate किया जाता है. माँ बसेरा is a very happy place, is a very happy home. मेरा ज़ाती तौर पे मानना है कि for a mother the best place is around her children and grandchildren. ये तो इसको तो अब रिप्लेस कर नहीं सकते, लेकिन सोशियो इकोनॉमिकल रीजंस हो सकते हैं या कोई और फाइनेंशियल रीजंस हो सकते हैं कि वेयर शी इज़ नॉट वांटेड एनी मोर, एंड दैट इज़ वेरी सैड. हमारा क्राइटेरिया ये है, वी डोंट टेक पीपल ऑफ द स्ट्रीट. ओके. वी वांट टू टेक पीपल विद रेफरेंस. ओके. कोई ना कोई बैकग्राउंड चेक जरूर करते हैं. सही. सो दैट इट्स अ सिक्योर प्लेस. इट्स अ सिक्योर प्लेस. कोई पता नहीं कोई मॉब्स ना आ जाएं उसमें, गैंग्स ना आ जाएं और उन दूसरे लोगों को भी ख्वार ना करें. तो we have about 6 mothers at the moment resident. Wow. Acha. We hope to expand and make a purpose-built. Well, the idea is so amazing that it deserves to be expanded, and it is so great to know that people with so much influence and resources are thinking on those lines. By the way, we have हमारी मदर के नाम पे स्कूल भी है. अच्छा. जो हमारे फादर ने शुरू किया था भावलपुर में. वो मेरे इस तरफ आने से पहले की बात. So philanthropy basically runs in the blood then. And I give a lot of credit to my wife and to my team that is working over there. बड़े हौसले की बात है. That's really great to know. Coming back to general life, अक्सर औकात इंसान की लाइफ में कुछ चीज़ें उसके मुताबिक नहीं भी हो रही होती. You're having your good phases and then you have some phases where you would see failures or things not going your way. उन times में how do you keep yourself motivated and determined? How do you keep going? Because you're out to do things for others, not just for your own self. I mean, even HospitALL, I have 18 to 20 people, team working with me. So it's not just about me anymore. It's about those people as well. So failures are there to teach you something about life. You cannot just get bogged down. जब आप एक मिशन लेके चलते हैं, एंड एंटरप्रेन्योर की ज़िंदगी में ऐसे आते हैं, अगर मेरा मिशन ये है कि आई वांट टू क्रिएट अ परफेक्ट एग्जाम्पल फॉर द यूथ, तो मुझे बहुत कुछ सहना पड़ेगा. सो मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा, सहना पड़ेगा. लेकिन मेरा अपना एक मैंट्रा है कि देयर इज़ ऑलवेज एन अपॉर्चुनिटी इन एडवर्सिटी. डेफिनेटली. फॉर एग्जाम्पल कोविड हुआ तो लोग बाहर नहीं निकल रहे, ये ठीक है, आप पहुंच जाइए, आप उन्हें केयर घर तक पहुंचा दीजिए. सो दैट्स अ न्यू अपॉर्चुनिटी दैट डिड नॉट एग्जिस्ट बिफोर. या सॉफ्टवेयर वो जो कि डॉक्टर्स भी अपने घर बैठ के अपने घर से ट्रीट कर सकें, वो आपने सॉफ्टवेयर बनाया. सो यू हैव टू फाइंड कि कोई ना कोई नई चीज़ आपको निकालते रहनी चाहिए. You have accomplished so much in so many diverse fields. और उस लिहाज से and you've been माशाल्लाह successful in all of them. तो कभी ये होता है कि the success kind of goes to your head, या how would you keep yourself grounded and humble? Deep down I am a very humble person. तो मुझे कहीं यकीन नहीं आता कभी मैं किसी इवेंट पे जाऊं
और जिन लोगों को मैं नहीं जानता वो मुझे जानते हैं. So बड़ा अजीब सा लगता है, हाउ डू दे नो मी, लेकिन they know But me. you should be used to it by now. हाँ, लेकिन फिर भी एक वो सेलिब्रिटी मोमेंट आ जाता है कि आप you feel like a celebrity. Yeah, definitely. Alhamdulillah. How do you handle it? You handle it well. You thank God. You get invited to places where you never thought you would be invited to 5 years, 10 years back. But you have to work hard for it. Definitely. You have to go to places where no one else is willing to go. और वो आप फिर कहते हो ये लोग भी डिजर्व करते हैं गाइडेंस, मेंटोरिंग, ये बच्चे भी डिजर्व करते हैं. तो मुझे कराची जाना पड़े, मुझे पेशावर जाना पड़े, मुझे इस्लामाबाद जाना पड़े, और ज़िंदगी में पहली दफ़ा फैसलाबाद में इसी वजह से गया था, किसी यूनिवर्सिटी ने बुलाया था मुझे. सियालकोट ज़िंदगी में पहली दफ़ा इस तरह गया था. तो वो यू डिस्कवर मोर पीपल, डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल एज वेल. आई थिंक इट्स अ लर्निंग एक्सपीरियंस. आप उनसे बहुत कुछ सीख के भी आते हैं. As we've discussed it before as well, that there is an artist in you, and you said a sleeping artist. तो आजकल वो जो आर्टिस्ट है वो कहाँ है और उसकी क्या एक्टिविटी चल रही है? Sleeping giant है, सोते रहने दिया जाए उसको. I mean really, I would like to learn play an instrument. अच्छा. I would like to have a Which instrument intrigues piano, you? It does. ओहो, पियानो की साउंड जो है ना, it just draws me. अच्छा. कहीं से मुझे पकड़ लेती है. तो क्या कहते हैं, बड़े होके मैंने पियानो सीखना है. नहीं, सीरियसली, और मुझे गुनगुनाने का शौक होता था बचपन से, जो कि मैंने छोड़ दिया था, उसको पिकअप कर लूँ. लेकिन इसके अलावा मुझे आई लाइक टेलिंग स्टोरीज. आई लाइक टू रीच आउट. आई लाइक द लिटरेचर शुड be seen and heard by people who are now so used to social media. तो मैं poetry recite करता हूँ, and I record it and I share it on WhatsApp, on Facebook. प्रोफेशनल साइड पर आते हैं. आपका ऑफिस में, अपने वर्क स्पेस में जो कह लें एक लीडरशिप स्टाइल है, वो कैसा है? आपने ड्रॉ करना होता है. कोई आपको प्रॉब्लम दे ना, आपने यू हैव टू गो बैक एंड ड्रॉ फ्रॉम योर एक्सपीरियंस कि यार जो मेरे साथ वो हुआ था, मैंने क्या किया था. Then you have to have the power of communication. ये बड़ी इंपॉर्टेंट है. कम्युनिकेशन. ठीक है ना, आपके पास जबरदस्त नॉलेज है, अगर आप वो रिले नहीं कर रहे, communicate it back to the audience that understands your language. Definitely. You have to see the audience कि वो audience आपकी किस ज़बान को समझेगा. अंग्रेज़ी, उर्दू, पंजाबी या बड़ी और तरीके से मिक्स करके बात करके जो वो समझ सके. सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है टू आइडेंटिफाई दैट. तो जहाँ तक मेरी टीम का सवाल है, आवर टीम इज़ वेरी गुड. आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई टीम, एंड दे हैव ग्रोन अ लॉट, एंड सम ऑफ देम हैव गॉन टू better jobs, bigger jobs, and some are planning to go. So it's a constantly evolving, moving process. और आएंगे. तो आपका लीडरशिप स्टाइल फिर कैसा हुआ? फ्रेंडली हुआ या थोड़ा, because given if you give so much importance to communication, so I'm sure कि आपका एक बड़ा healthy relationship होगा with your teammates and your employees. I think it's very important कि जो मैं जाता हूँ अपने डैड की तरफ आ जाता हूँ, उनमें एक ख़ास बात जो मैंने पिक की उनसे, वो हर एक को इतनी तवज्जो से सुनते थे, इतनी तवज्जो देते थे कि वो शख्स जो उनका ऑडियंस होता था, वो समझता था कि ये सिर्फ मुझे ही वो शफकत दे रहे हैं, वो प्यार दे रहे हैं. यही चीज़ मैं अडेप्ट करके मैं अपने टीम मेंबर्स हूँ, मुझे बड़ा, और मैं सबसे कहता हूँ आप लोग सब मेरे बराबर हो. आपका जेडी जॉब डिस्क्रिप्शन डिफरेंट ज़रूर हो सकता है, बट यू आर द सेम टू मी. माई डोर्स आर ओपन एंड यू कैन वॉक इन एनी टाइम. सो आई थिंक एम्पैथी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. डेफिनेटली. ठीक है ना, कंपैशन इसके बाद आता है, लेकिन एम्पैथी कि वेयर दे आर, what they might be thinking and what kind of message will they understand. So I think that is very important. This question will be very handy for young professionals. ऐसी क्या 2-3 चीज़ें हैं जो आपकी attention grab करती हैं in a young individual? CV is the first interaction, and then आजकल के ज़माने में हम कोशिश करते हैं कि एक वर्चुअल मीटिंग पहले कर लें, बजाय इसके कि उनको इतनी दूर से बुलाएं. बिल्कुल. तो हम उनको पहले assess कर लेते हैं कि do they have what it takes academically या experience wise. Once they are here, take them through a series of interviews. सही. जब तक मुझ तक पहुंचते हैं, then I take the position
कि जितनी ये कीन है और अगर ये अच्छा रिसोर्स है उतना ही मुझे कीन हो के इसको सेल करना ही ये जॉब यू नो एंड व्हाई शुड दे चूज दिस जॉब एज अपोज टू अदर कंपनीज सही और वो कहते हैं ना कि पीपल डोंट चूज कंपनीज पीपल चूज बॉसेस सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट that they understand that they can learn and they can develop further within my team. Definitely. तो ये पहला मेरा मैसेज होता है. उसके बाद फिर मैं उनको देखता हूँ कि कॉन्फिडेंस कितना है, एटीट्यूड क्या है इन लाइफ. एंड आई हैव अ वेरी अनकन्वेंशनल वे. मैं कहीं से पिक कर लेता हूँ कोई क्वेश्चन जस्ट टू सी कि वो कैसे रिएक्ट करते हैं. आजकल आप किन चीज़ों पे काम कर रहे हैं? एनीथिंग न्यू दैट इज कमिंग अप? विद इन स्टार्टअप तो इसी को एक्सपेंशन के प्लान्स हैं. एक तरफ से टेक्नोलॉजी में और फर्दर डायरेक्शन हो. अभी हाइब्रिड मॉडल है, इसमें टेक्नोलॉजी और ऐड की जाए. दूसरी तरफ से इन रियल टर्म्स भी कि हॉस्पिटल को इन रियलिटी क्या हम ऐसे आइडियल परफेक्ट क्लिनिक्स बना सकते हैं, स्मार्ट क्लिनिक्स कि जिनसे हॉस्पिटल की फिलॉसफी की मैनिफेस्टेशन हो. क्योंकि when we recommend others, we do not have control. So what we say should be the case. Can we actually build that perfect environment? तो उस तरफ मेरा है. अब देखिए कहाँ तक. One question which is always of my interest is what is your take on women empowerment? और आपके organizations में कितनी opportunity दी जाती है employment में ख़वातीन को? I think it starts from home. सबसे पहली बात है आपको रेज़ कैसे गया है. हमारी वालदा ने तो हमें बड़े अच्छे तरीके से रेज़ किया है और हम तो बहुत बराबरी से डील करते हैं. सो यू नो इट स्टार्ट्स विद माई वाइफ. शी हैज़ ओपन full freedom to do whatever she wants to do professionally. Got 2 grown-up daughters. They have their own careers in a different way. So they are encouraged. अभी आपने कहा था कि हॉस्पिटल बड़ा अच्छा नाम है. माँ बसेरा वॉज ऑल्सो कंसीव्ड दिस टाइटल बाय मी. तो माँ बसेरा को वो रन करती हैं और अपने शौक से करती हैं, कोई कंपल्शन नहीं है. शी डजंट गेट पेड, बल्कि वो अपने बजट्स में निकाल के माँ बसेरा में ओवर एंड अबव जो बजट्स मिलते हैं अपने शौक से करती हैं. तो ये तो घर की बात हुई. अब आ जाइए यहाँ बिजनेस पे आ जाइए, नेटसोल में आ जाइए. 15 to 20% ऑफ वर्क फोर्स इज विमेन. मैं ये समझता हूँ मेरिट को आपको देखना चाहिए. जहाँ पे 2 लोग इक्वल मेरिट पे हैं वहाँ पे आप फीमेल को ज़्यादा दें, प्रायोरिटी दें. लेकिन ये ज़रूर देखें कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर लेट आवर्स वाली जॉब है तो जो लेट आवर वाली जॉब है वो आप मेल को दे दें, जो लिमिटेड वाली वो फीमेल को दे दें, ताकि उनके चैलेंजेस वो ना रहे फैमिली के, कल्चरल चैलेंजेस. टू हैव दैट सेंसिटिविटी एज एन एम्प्लॉयर ये भी बड़ा कम होता है कि एक एज एन ऑर्गेनाइजेशन जो CEO है वो ये थॉट प्रोसेस रखते हो कि नहीं वी शुड ऑल्सो फैसिलिटेट विद वुमेन एम्प्लॉयज़ और उनको एक एक्स्ट्रा माइल अगर जाना भी पड़ रहा है उनके लिए तो वो जाया जाए. ये थॉट प्रोसेस अभी भी वाइडली नहीं देखा जाता. हम जब हमारी देखिए हम एजुकेटेड बहुत हैं. इन द मेन वी आर ऑल वेरी एजुकेटेड. हमारी तरबियत नहीं की गई है, हमें हमारी ब्रॉटअप नहीं की गई है. तो एम्पैथी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी. सो एज अ CEO आपको देखना है कि एम्पैथी किसी को, फॉर एग्जाम्पल आई हैव हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीमेल टीम मेंबर इन माई ऑर्गेनाइजेशन और बट आई केप्ट हर लाइफ केप्ट चेंजिंग. शी गॉट मैरिड, आई गेव हर टाइम ऑफ वट एवर दैट इज़ नीडेड. शी वॉज एक्सपेक्टिंग अगेन उसकी उस एम्पैथी के साथ उसको दिया गया और वो टाइमिंग्स आज भी उसके वही हैं जो उसके लाइफस्टाइल को सूट करते हैं. Well, that is so considerate. This is my little contribution, but in return, I got a wonderful resource, जो कि मेरी इंस्पायर की बैकबोन रही है. तो I think it has been a rewarding experience. That is really, really refreshing to know. इसी तरह हॉस्पिटल में भी 40% of the workforce is females. अच्छा, तो every day your business is all about taking decisions. कोई ऐसा एक डिसीजन जो आपको अभी तक याद हो या जनरल भी हम इसको ले सकते हैं जो आपको बहुत मुश्किल लगता हो लेना? देखिए आई हैव met with very different kind of people throughout my life. Hundreds and hundreds if not thousands and thousands.
उसमें कभी डिफ़िकल्ट कैरेक्टर आ जाते हैं जो कि वैसे बहुत अच्छे होते हैं, इंटेलेक्चुअल होते हैं, बड़े अच्छे वर्कर होते हैं, कहीं पर्सनैलिटी में उनके कोई ऐसी ट्रेट होती है जो आपके वैल्यूज से मैच नहीं करती। उनको लेट गो करना बड़ा टफ होता है कि यार इतना अच्छा रिसोर्स है यार, इतना मैंने इसके साथ काम किया, इतना इन्वेस्ट किया, अपनी जान लड़ाई है और अब ये पटरी से उतर गया है, उसको लेट गो करना पड़ेगा। तो ये टफेस्ट डिसीजन होता है। बट एज अ CEO ऑफ अ कंपनी यू हैव टू हैव दैट डिसीजन मेकिंग capability. You cannot just be emotional about work. If their work, मैं देर इसलिए कह रहा हूँ his और her की बजाय इसको, if their work is impacting on the rest of the team, then they are bad news for you. You have to let them go. But on a personal side, it is always sad to lose them. तो ये मुश्किल रहा है. You definitely have a very wonderful, a very different career, professional track. तो इस सब में जो मेरे जहन में बड़ी एक चीज़ उस वक्त से आ रही है वो ये कि आपकी इंस्पिरेशन जो है वो कौन है? Dad. Your dad. Our father started very humbly. I was born in Bahawalpur, so we were at Bahawalpur that time. So from a very ambitious worker, he was working for some oil company, but very humble job. And he was the provider for family at large for his own siblings at that time. अच्छा. He educated a number and scores and dozens of people, got many girls in the family married off, so he had that belief. He could go to a big city from Bahawalpur and land straight to Gulberg. उस ज़माने में Gulberg was the in thing. There was no DHA. अच्छा. So landed in Gulberg, and within a few years he made his mark. Inspiration तवक्कल की भी आती है कि डैड में जो सबसे बड़ी क्वालिटी थी तवक्कल की थी कि शुक्र करो जो तुम्हारे पास है and yet strive for more. तो लेकिन वो जो अल्लाह पे believe, he brought me closer to God. Really, मैं आपको बताऊं, और एक वक्त आया कि I wanted to set the same example for my children as well. So he was instrumental. Otherwise, आप एक बच्चे के लिए अल्लाह क्या है, जो नज़र नहीं आ रहा उसके लिए क्या है? तो ये आपकी अपब्रिंगिंग आपको एहसास दिलाती है. Your parents make you realize कि ये कहाँ से बनी है दुनिया, खुद ब खुद तो नहीं बनी है. फिर you go deeper and say, yeah, you're right. There has to be an afterlife, and there is. As Muslims we believe there is afterlife. And फिर उस चीज़ पे रूहानियत की तरफ लेके आना और अपने पे बिलीफ रखो, तुम कुछ भी कर सकते हो. तो Dad has been the biggest inspiration. So given with your busy schedules and a lot of professional commitments, personal life को और professional life को कैसे balance कैसे करते हैं? How do you do justice to both? बड़ा मुश्किल है, because when you have a professional life of an entrepreneur which is 24/7 work, जिन लोगों का अपना बिजनेस है वो डिटैच नहीं हो सकते, स्विच ऑफ नहीं हो सकते कि या लेट आवर्स होंगे या 24/7. तो बड़ा मुश्किल है. फिर आपको क्या करना पड़ता है, आपको नए दोस्त उसी इकोसिस्टम में बनाने पड़ते हैं, वरना जो पुराने वो आपको एक्सेप्ट नहीं करते. यार तू क्या बना फिरता है, इतना बिजी हो गया हमारे लिए. अब यार ये कोई एक्स्ट्रा सेंस ऑफ प्राइड नहीं है, कुछ नहीं है, बस लाइफस्टाइल चेंज हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया, क्या कर सकती है, माफ कर दो. तो आपको नए दोस्त बनाने पड़ते हैं. लेकिन मैं फिर ये कहूँगा जो दोस्तियाँ पुरानी हैं वो नई नहीं बन सकती, नई में वो बात नहीं होती. बिल्कुल. तो इट्स अ मिक्स बैग, इट्स अ चैलेंज. बेस्ट ये है कि आप अपनी फैमिली से दोस्ती कर लें और उन्हीं के साथ यू हैव अ गुड टाइम एंड यू बिल्ड अ सर्कल अराउंड दैट. तो ये बेस्ट है, कोई कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं रहते. बिल्कुल, दैट इज़ अ गुड अप्रोच. तो अच्छा ये बताएं कि गुस्सा आता है आपको, और अगर आता है तो उसको कैसे कंट्रोल करते हैं? आई थिंक द ओनली रिसिपिएंट एट द मोमेंट इज माय वाइफ. मैं कह रहा हूँ मैं तुम पे नहीं गुस्सा कर रहा, व्हाई यू शायद, मैं तुम पे नहीं कर रहा, मुझे हैव टू लेट इट आउट, आई हैव टू वेंट इट आउट समवेयर. वो अगर मैंने ऑफिस में किया सब छोड़ के भाग जाएंगे. सो बट सीरियसली आई थिंक यू हैव टू डाइवर्ट योर माइंड. आई लाइक गोइंग फॉर मूवीज स्पेशली अब्रॉड. फिर पाकिस्तान में भी अब तो बिल्कुल ही बंद हुआ है.
I like going out. तो स्ट्रेस भी इसी तरह रिलीज करते हैं when you're too stressed and too much workload is going on. So और यहाँ कोई स्पेशल कोपिंग मैकेनिज्म है कि नहीं, अब आई एम फीलिंग टू स्ट्रेस्ड, आई एम गोइंग समवेयर, व्हाट वुड यू प्रेफर? दिल तो बड़ा करता है कि 2-4 दिन के लिए किसी को बताए बगैर अकेले गाड़ी लेके निकल जाओ. काम वाइज कर नहीं सकता. It's not possible. कभी आई वुड लाइक टू बी इन दैट ऐसे स्टेट में आ जाऊँ कि जहाँ मैं ये अफोर्ड कर सकूँ कि इफ आई स्विच ऑफ एंड आई प्लग ऑफ, मोबाइल फ़ोन से भी छुटकारा. मोबाइल फ़ोन नहीं जान छोड़ता, कोई ना कोई मैसेज आया होता, तो बड़ा मुश्किल है छुटकारा. आज की ज़िंदगी में बड़ा मुश्किल है. आपके नज़रिए से अगर पूछें कि आइडिया ऑफ हैप्पीनेस, व्हाट इज़ हैप्पीनेस टू यू? वो कर सको जो दिल चाह रहा है, वहाँ जा सको जहाँ दिल चाह रहा है, एंड अच्छे ज़मीर के साथ सो लो. That is a beautiful thing that you तीन said. कंडीशंस है बिल्कुल. हैप्पीनेस टू अटेन हैप्पीनेस. तो ये नहीं कि हैवी कॉन्शियस है, किसी को तकलीफ दे के आपने वो किया. ये तीनों कंडीशन जरूरी हैं, वही हैप्पीनेस है. अगर आपने हैप्पीनेस अटेन कर ली है और आपका लव वन इज नॉट हैप्पी विद दैट, then it is not truly happiness. That's selfishness. So are you fond of books? And if you are, like, कोई हमें अपनी favorite book suggest करें which has been very life changing, या even if it's fiction and it's very close to your heart? I think पढ़ना अच्छा लगता है, इतना टाइम नहीं मिलता. रूमी की 40 Rules of Love, that is pretty good. It goes deeper, and so many of his quotes, so many of his philosophies, they take you deep down. आप spiritually आप निकल जाते हो किसी और जगह पे, और फिर आपका दिल करता है कि आप कहीं दूर पहाड़ों में चले जाएं, नो मोबाइल फ़ोन, कनेक्ट विद द नेचर एंड जस्ट फील द एयर, शट योर आइज एंड जस्ट फील द एयर, द ब्रीज, एंड दैट्स इट, स्टे देयर फॉर अ कपल ऑफ आवर्स. हो नहीं पाता. आई थिंक दैट्स द स्ट्रगल वी ऑल आर फेसिंग. नहीं होता ना कि कर लेंगे लेकिन वन फाइन डे पता चलता है कि टाइम खत्म. अच्छा, given that you are constantly in the field of innovation, I'm sure every day you come across a new idea of a startup and innovations. इस पिछले अरसे में कह लें कुछ 4-5 साल अगर हम कहें, आपकी नज़र में आपकी फेवरेट इनोवेशन क्या रही है? देखिए, ये जो टेक्नोलॉजी है ना, ये एट द बैकबोन ऑफ एनीथिंग मीनिंगफुल gives that added value. Convenience of any kind. Payment convenience है, booking of anything convenience है. जैसे Uber है, करीम है, Airbnb है, ये बड़े इंस्ट्रूमेंटल रहे. बुकिंग, एयरलाइन बुकिंग गोइंग ऑनलाइन, बहुत बड़ी कन्वीनियंस है. सो मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों ने ट्रांसफॉर्म किया सोसाइटी को. In Pakistan, building of roads, a better infrastructure, that is big innovation. Now we have a summer. I mean, your channel is brilliant idea. Really, really. I'm totally in love with the concept. I'm a deep down a true blue Pakistani. तो पाकिस्तान फर्स्ट और आप जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आई थिंक अब आप लोग क्या कर रहे हैं, जो पाकिस्तान में चेंजेस आ रही हैं. पहले सिर्फ समर नहीं एग्जिस्ट करता था, यहाँ कोई रुक नहीं करता था. जी बिल्कुल. अब समर में आकर नॉर्थ की तरफ जाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो रहा है, एंड योर चैनल विल बी शोइंग ऑल दैट इज़ गुड अबाउट पाकिस्तान. नॉट सो गुड भी शो करेंगे, वो भी ज़रूरी है. बहुत सी चीज़ों में, जैसे मैंने कहा कि टू ट्रांसफॉर्म द सोसाइटी एज अ सोशल एक्टिविस्ट, इन्होंने बड़ा ट्रांसफॉर्म किया सोसाइटी को. इतना कुछ लेके आया, इतना कुछ दिया, और ये सारी जिंदगी चलेगा. तो ही इज ऑल्सो एंड शुड बी एन इंस्पिरेशन फॉर मेनी ऑफ अस. तो मैं ये समझता हूँ कि आपको जब आप दिखाते हैं, टेलीविजन दिखाएंगे, बहुत फर्क आएगा. देयर विल बी अ ह्यूज चेंज विद दिस नेटवर्क दैट इज सोलली फोकस्ड ऑन शोइंग व्हाट इज पाकिस्तान to the world. Who to you is the perfect CEO? What attributes या क्या ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो एक CEO को एक ग्रेट CEO बनाती हैं? ये बड़ा ज़रूरी है कि एक CEO दूसरे CEO से डिफरेंट कैसे हो सकता है. विजन. They must have the ability to see the big picture, कि दुनिया में क्या हो रहा है, और दुनिया में जो टेक्नोलॉजी है, या अब ये तो टेक्नोलॉजी नहीं है, कोविड चेंजेस आई ना आपको, बिल्कुल. तो जो चेंजेस आ रही हैं
उनको कैसे एड्रेस किया जा सकता है इन योर ऑफरिंग्स फेवर। तो एक CEO must possess that far vision, that big picture, ability to lead. Leadership is very important. Inspire people, get the best out of them. Not just being a boss, but being a leader. एक लीडर और बॉस में आपको पता है क्या फर्क है? लीडर क्रिएट्स मोर लीडर्स लाइक हिमसेल्फ। ये सोचे समझे बगैर कि यार ये मेरे से आगे ना निकल जाए तो क्या हुआ, आप और ऊपर चले जाओगे, वो एक और आपके टीयर आ जाएगी नीचे, आप और ऊपर चले जाओगे। और वैसे भी अगर कुछ दुनिया से जाना है, कुछ दे के जाओ, लोग याद करेंगे आपको। सो लीडरशिप क्वालिटी, एम्पैथी। एम्पैथी होने से ना सिर्फ आप अपने मैं कहता हूँ आपके जो टीम है, लफ्ज़ एम्प्लॉय मैं कम यूज़ करता हूँ, जो आपकी टीम है ये आपके इंटरनल कस्टमर्स हैं। बिल्कुल। मेक देम हैप्पी, गिव देम योर बेस्ट एंड दे विल गिव देयर बेस्ट टू द कंपनी। तो ये लफ्ज़ एम्पैथी, इट ट्रिकल्स डाउन। व्हेन यू हैव एम्पैथी, बट यू हैव टू बी स्ट्रांग, you should be able to, you should have the ability to fire people. As much as you hire people, if someone is proving bad for the organization, no matter how dear they have been, दोस्ती अपनी तरफ है। Sorry, it's not working. We are not a good fit. शायद हम आपके लायक रहे नहीं। ठीक है ना? There are ways of saying things. Yeah. तो आप जैसी सिचुएशन देखें वैसी बात करें। Communication skills. Your vision, your message should be communicated well. Leading by example. Unless you are working 24/7, unless you are available for them. मैं जब से हॉस्पिटल, वैसे इंस्पायर में भी ऐसे ही था, I was the one who would arrive before 9 o'clock. अच्छा। अगर मैं नहीं आ रहा तो मैं दूसरों से क्या What example you're setting, definitely. So ये बड़ा important है। ये कुछ एट्रीब्यूट्स हैं एंड स्टोरी टेलिंग आनी चाहिए। These are some great pointers that you've given. In a nutshell, आपने अपनी जर्नी से क्या सीखा है? Belief. Have your faith, your belief. Never say die. Find a different solution. Always the ability to pivot. कोई और रास्ता ढूंढ लें, उसको अबैंडन नहीं करें, अपने मकसद को अबैंडन नहीं करें, रास्ता थोड़ा चेंज कर लें। That is a great advice. Don't mind losing small fights. Your eyes should be at the bigger battles. तो bigger battles को फोकस करें, अपने ईगो को नीचे करें। अगर ईगो है तो आप फिर बिजनेस में ना आए, लीडर ना बने, क्योंकि इतने लोग हैं जो आपको पुट डाउन करते रहेंगे। आप ईगो से हर वक्त डिप्रेस रहेंगे, तो वो ईगो ना रखें, आपको have thick skin. I really want you to give a message to our younger generation, जो हमारे aspiring entrepreneurs हैं, young professionals हैं, उनके लिए एक message that would motivate them. Anything that you want to say. आपको जितने मुश्किल हालात लग रहे हैं, हाँ जी, उतनी उसमें आपको पॉजिटिव्स अपॉर्चुनिटी नज़र आएंगी। और अपना विजन ज़रा भरपूर रखिए। ट्राई टू रीड, डू नॉट वेस्ट टाइम। आपको पता नहीं चलेगा कि कितने आराम से वक्त गुजर जाएगा। कीप ड्रीमिंग, कीप स्ट्राइविंग फॉर देम, कीप गोइंग आफ्टर योर ड्रीम्स। डू नॉट शाई अवे फ्रॉम हार्ड वर्क, बट ऑल्सो फोकस ऑन स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क, हाँ, बड़ा ज़रूरी है। प्रायोरिटाइज योर डे, फोकस करें प्रायोरिटी क्या है, प्लान करें इस साल मैंने ये करना है, उसको ब्रेक डाउन करें इन क्वार्टर्स, उसको ब्रेक डाउन करें बाय मंथ एंड बाय वीक्स, and you'll have a very busy life, very scheduled life. Thank you so much for this very, very inspiring and knowledgeable conversation that we had. I definitely learned a lot today from you, and I'm sure the audiences will too. And I'm glad that you were a part of our show. I'm glad to be here. I'm really excited. I wish you all the best to the whole channel and the top management as well. And I hope the viewers have picked up something new today through my conversation. So this was a very refreshing conversation that we had with Mr. Ayub Ghauri, in which he brought forward a very diverse vision where the creative and the corporate world can work together to bring bigger and better things for all of us. For more such amazing and interesting conversations, keep on watching our show, Meet the CEO, only on Discover Pakistan.